कहते हैं सपने वो नहीं जो रात को आपको सोने दे, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएं और तब तक सोने ना दे जब तक मंजिल मिल ना जाए। नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी आईक्यू पे। आज ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने एक सपना देखा और तब तक नहीं रुके जब तक उनको मंजिल मिल नहीं गई। यूपी पीसीएस 2019 में रैंक 38 हासिल करने वाले शिवम सिंह। बहुत बहुत स्वागत है शिवम जी आपका स्टडी आईक्यू पे और ढेर सारी बधाइयां आपको, इतनी अच्छी रैंक आपकी आई है। Thank you, ma'am, for the decent introduction. And as far as the rank is concerned, I have secured rank 38 in the deputy character category, and this has been my first attempt. शिवम, आपने बताया कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो क्या मोटिवेशन था आपका इस एग्जाम में आने का, इस एग्जाम को लिखने का और सक्सेसफुल होने का? Ma'am, initial motivation मैं कहूँगा I got from my father, and he wanted me to prepare for civil services. Initially, I was not that much interested, but initially एक ये दिमाग में था कि finally I have to get a job and set. But later on, when I passed out from my BTech, and there was opportunities were very meager. So I thought to write GATE exam, and when I entered into IIT, I found my colleagues who were preparing sincerely for this exam. So I thought of giving it a shot and started reading the newspaper daily, and slowly and steadily the motivation and the interest in the exam got sink in me, and from there the journey began. Ma'am, I completed my MTech in 2019, and I was preparing for it in the during my MTech itself. And after 2019, I came to Delhi for a year, and hopefully, fortunately, with the God's grace, in a year I qualified this exam. So we can say the initial push for this was from my parents, but steadily the interest got into me, and I pursued it. That's great to know, Shivam, about your journey. जैसे आपने बताया कि when you entered into IIT to do your MTech, तब आपका ये मोटिवेशन और ज़्यादा इग्नाइट हुआ। हम जानना चाहते हैं क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड रहा है आपका इस प्रिपरेशन में आने से पहले? My education background has been very average since the beginning itself, and like for in my 10th standard, I got in the science, I think I got in 50s, which were very less, and but because of the society, I took science, and there was no other option, and the trend continued in 12th also. I got 75.4 overall, and 53 and 60s in physics and chemistry, which are again very less. So I did not have much options, so I got enrolled for my BTech in a normal college in Lucknow, and steadily the thought of कि मतलब करना क्या है आगे, that started taking me. So in third year, I decided कि चलो job तो मिलनी नहीं है, तो कुछ प्रिपरेशन ही कर लेते हैं. So I started preparing for GATE, and फिर वो एक साल I prepared thoroughly, and then GATE qualify करके I went to IIT. अब IIT का क्या है कि we have a different atmosphere there. Students are preparing for different exams like GATE and GRE, so you get motivated by going to library on a daily basis. Even no one is saying to you to go to library, and then also students go to library, and that's the kind of motivation which I learned from my colleagues in IIT. एंड फिर मैम वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सिंसियरली, और फिर आई थिंक वही कंटिन्यू रहा एक मोटिवेशन कि नहीं पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है. तो आप कह सकते हैं कि मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की जर्नी रही है जो लास्ट में थोड़ा सिंसियर हो गया है और फाइनली एक रिजल्ट आ गया है. अगर हम आपकी जर्नी की बात करें शुरुआत से लेकर अभी तक की, और अभी अगर हम इसे थ्रेशहोल्ड बोलते हैं, अ, तो ये बहुत मोटिवेटिंग रहेगा जितने भी लोग सुन रहे हैं कि एक यू कैन हैव अ वेरी ऑर्डिनरी बिगिनिंग एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। तो दिस इज एक्सट्रीमली वेरी ग्रेट टू नो अबाउट। थैंक यू. जैसे आपने बात की कि व्हेन यू वर इन आईआईटी यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सिंसियरली, तो कितना टाइम लगता है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए? इस एग्जाम को कहते हैं एक चक्रव्यूह है, और अगर हम घुस गए तो उस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी मच डिटरमाइंड एंड यू हैव अ वेरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो कितना टाइम तकरीबन लगता है इस प्रिपेयर एग्जाम को सोलफुली प्रिपेयर करने में? तो मैम जैसे मैं कहूँगा कि बहुत सारे रूमर्स हैं इस एग्जाम को लेकर, फॉर दैट मैटर यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम को लेकर वी हैव डिफरेंट रूमर्स. एंड तो जैसे अभी आपने बोला कि एक चक्रव्यूह है, तो मैम ऐसे बड़े बड़े शब्द अगर हम यूज करते हैं तो हम पहले ही डर जाते हैं. आई थिंक अगर हम एक एग्जाम को एक एग्जाम की तरह लेके करेंगे तो फिर कोई भी एग्जाम बड़ा नहीं होता. तो अगर हम प्रॉपरली प्लान करके करेंगे, हाँ थोड़ा इसमें टिपिकल इसलिए होता है बिकॉज वी हैव 3 डिफरेंट स्टेजेस और हम किसी भी स्टेज में बाहर हो सकते हैं, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग.
तो ये थोड़ा सा इशू होता है, बट वी प्लान प्रॉपरली एंड एग्जीक्यूट इट ऑन द गिवन डे, एंड आई थिंक रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। आई थिंक एक बार में नहीं तो वी कैन डेफिनेटली सक्सीड इन 2 अटेम्प्ट्स, एंड ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए अगर देखा जाए तो 1.5 year इज मोर देन। शिवम, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतनी बेहतरीन रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया। अ, और आपने ये भी बताया कि कैसे लिमिटेड टाइम में हम इतनी अच्छी रिज़ल्ट के साथ इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए परफेक्ट 1 ईयर की इस एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए? मैम, मैं इस एग्जाम को 3 पार्ट में हम लोग पहले डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, दी पर्सनालिटी टेस्ट। तो मैम, प्रीलिम्स के लिए वी हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी एंड वी फोकस मोर ऑन फैक्ट्स, एंड द मेन थिंग टू कट इट डाउन इन 1 year period is to limit your resources. We tend to read many resources, and because of which it becomes very haphazard and we're not able to compile it in the end. So I think the first and the foremost step is to limit the resources. We have at most I think 2 books for per subject, and for prelims the other important thing is solving as many mocks as possible. I think I solved around 57 mocks, 57 or 60 mocks for the prelims exam, and वो तो अगर हम लोग मॉक ज्यादा सॉल्व करते हैं तो उससे होता क्या है कि हम लोग की रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफी बढ़ जाती है, बिकॉज एग्जाम में हार्डली वी नो अराउंड 45 or 50 but we have to attempt somewhere around 75 or 80 or 85 90 questions. So ma'am, to get to that mark, I think we have to make some calculated guesses, and those calculated guesses comes from a lot of practice which we have in the mocks. तो इंट्यूशन का खेल होता है, वी गेट द इंट्यूशन बाय रीडिंग द क्वेश्चन कि नहीं ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन सही होगा. So all these things comes from lot of practice. So I think 50-60 marks for prelims, limiting your resources, revising them multiple times. I think n number of times you have to revise the given book. And for mains, we have a different strategy for each and every paper. Like for GS 1, 2, 3, 4 and optional. Initially, I took the optional anthropology without any advice. But when I came to Delhi, I thought that the decision was correct because the guidance was properly available for anthropology, and it's more related to science. So it's more easy to understand. You don't need to mug up a lot of things. And my optional is anthropology. And starting with the GS1, and I would like to say that the syllabus of GS1 is more aligned with the static portion of the prelims. It's the history, geography, and we have the extra portion also like society and the world history. And for the book list, coming to the book list, for the GS1, the prelims portion books will do. And for the world history portion, we can use the Tamil Nadu NCERT book. And for the society portion, we have the Indian Society NCERT. And for the world geography portion, GC Long is must. I think there are many questions which are related to the geographical different landforms, which are clearly given in the GC Long portion. I think we can do it from there. Ma'am, GS2 के लिए there is a strategy because we have the major chunk is from the polity, and the polity can be covered from Lakshmikant, and the governance portion for the governance, and the other extra portion we can download any compilation from any coaching institute, and the international relation portion is from the newspaper. We can do it from the newspaper because most of the questions are current based. Like in my mains, there was question regarding the India-Nepal issue, which was in the news, and the Iranian tensions. So all these questions can be easily tackled if you are reading the newspaper on daily basis and making your own notes. And now coming to GS3, GS3, we need to prepare each and every topic. We need to prepare a separate note for each and every topic, like half page or full page note, because the questions are asked directly from the syllabus itself. So if you have a note already prepared, and it will be easy to revise and easy to write it down in the exam without any problem. I think for GS2, we can prepare a separate note for each and every topic. And there is a lot of current affairs section in the GS3, and that current affairs section again from the newspaper. And throughout the preparation, newspaper will be very much helpful. And for me, like I have read the newspaper for 1.5 years continuously without leaving any day, and I have prepared notes on daily basis, my own notes. And every day, I think 3 or 3.5 pages notes from Hindu are compiled on daily basis. And all these notes, all these current affairs will be very much helpful when you write the exam, because in every static question, if you add a current part, that will give you an extra mark. Now for GS4, again, we need to prepare according to the syllabus. And there is one book called Lexicon. One can read the lexicon or any other coaching material.
And what we need to do is we just need to stick to the syllabus and prepare notes for each and every topic which is given in the syllabus. And for GS3, for the case study part, in the UPPCS, the case studies are not that much asked as compared to the UPSC. And we have a single case study which comes in the exam, and that too is an easy question, and we can easily solve it. Shivam, you have described in detail about your strategy for general studies. Um, आपका ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी. क्या स्ट्रैटेजी थी एंथ्रोपोलॉजी की आपकी? मैम एंथ्रो पहले तो इसलिए लिया था मैंने बिकॉज वी कैन स्कोर हाई इन एंथ्रोपोलॉजी एंड द सिलेबस इज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड. The current affairs part is not that much as compared to which is there in geography or for that matter sociology or philosophy. And because of the restriction of the syllabus, we can revise the same thing again and again, and it becomes easy to write it down in the exam because the questions are very direct. For anthropology, my strategy was I referred to my coaching notes. I went to Vajiram and I referred to my coaching notes and then revised them multiple times. Again, the revision comes to the play. And for the paper two portion, we have a lot of questions regarding to Indian tribes and NGOs for these section of the syllabus. And for these, we can compile the current affair notes and we can use the current affairs in these questions because this will make our answer different from the others. I think try to use current affairs in each and every answer. If you use the current affairs in each every answer, the examiner will think that the student is aware of it. शिवम, क्या आप मेंशन कर सकते हैं रिसोर्सेज आपने जो एंथ्रोपोलॉजी के लिए रेफर किया था? यस मैम. मैम एंथ्रोपोलॉजी के लिए पेपर वन की अगर बात करूं तो फिर उसमें मैंने सबसे पहले तो थोड़ी एम्बर पढ़ी थी. एम्बर एंड एम्बर एक काफी स्टैंडर्ड बुक है, हम लोग ने उससे स्टार्ट किया था. तो उससे क्या होता है कि हमारा एक इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी अगर हम ले रहे हैं तो पहले हमें एक इंटरेस्ट जनरेट करना होता है उस सब्जेक्ट के थ्रू बिकॉज वो 400 मार्क्स का ऑप्शनल होता है. इट मैटर्स अ लॉट. तो एम्बर एंड एम्बर पढ़ सकते हैं. उसके बाद फिर मैंने कोचिंग नोट्स को ज्यादा रेफर किया है बिकॉज कोचिंग में अगर हम जा रहे हैं तो फिर जो फैकल्टी है वो ऑलरेडी कंपाइल कर रही है डिफरेंट सोर्सेस से. तो अगर हम लोग फिर से दूसरे सोर्सेस पर जा रहे हैं तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक हम लोग कोचिंग के नोट्स अगर हम लोग रेफर कर रहे हैं तो पूरी तरीके से हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं. और पेपर टू हम लोग न्यूज़पेपर को काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं बिकॉज उसमें काफी केस स्टडीज आती है रिगार्डिंग एनी ट्राइब्स. तो फिर हम लोग उसमें काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं. एंड मैम फॉर पेपर वन जिसमें हम लोग का थ्योरीज वाला पोर्शन है, there is one channel on YouTube and we can refer to that, and usme each and every theory has been explained properly. And for Indian anthropology, Nadeem Hasnan part, the Nadeem Hasnan is a book and which I have referred for the physical anthropology of the India and the Paleolithic and Chalcolithic and all these things. And I think I have not referred to multiple sources and I have restricted to fixed number of sources and I have revised them properly. मुझे लगता है शिव, मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्ट करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि किन रिसोर्सेज के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ करंट अफेयर्स को कॉम्प्लीमेंट करके एग्जाम की तैयारी करना. ये हमने बात कर ली कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए जनरल स्टडीज में ऑप्शनल्स की, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आंसर राइटिंग. कब से आंसर राइटिंग शुरू करनी है, कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है और कैसे अपने आंसर्स को दूसरों से अलग करना है? मैम आंसर राइटिंग के लिए आई थिंक मैंने 4 to 5 फुल लेंथ पेपर सॉल्व किए थे और मैं पहले भी डेली बेसिस पे 1-2 आंसर लिखता था. तो इससे क्या होता था कि एक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए आंसर का वो एक इवॉल्व हो गया बिकॉज इनिशियली काफी हैफेजार्ड लाइक इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा लिख रहा हूँ या मैं कंक्लूजन बहुत हैफेजार्ड सा लिख रहा हूँ. तो फिर ये प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व होता है बिकॉज हम लोग पहले दिन से ही परफेक्ट नहीं लिख सकते. और आंसर राइटिंग शुरू करना बहुत जरूरी है बिकॉज पहले दिन हम लोग सबसे अपना गंदा आंसर लिखते हैं. तो वो दिन आना बहुत जरूरी है. उसके बाद ही हम सीखते हैं कि हमारा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है आंसर का. तो इसके लिए प्रॉपर मेंटोर बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग के लिए. एंड जो प्रॉपर आंसर राइटिंग है फॉर एग्जाम तो वो मैंने प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट की थी. और प्रीलिम्स के बाद मैंने 4-5 फुल लेंथ पेपर लगाए थे और डेली बेसिस पे 3-4 क्वेश्चन उसको लिखता था और उसको प्रॉपरली रिव्यू कराता था. तो आई थिंक द मेन फोकस आंसर राइटिंग में होना चाहिए कि हम लोग हर आंसर में कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. बिकॉज हम लोग अगर सेम आंसर लिखते जा रहे हैं 10-12-20 आंसर लिख दिए बट अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो आई थिंक वो फिर उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो अगर हम लोग इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें तो हम लोग दूसरे तीसरे आंसर के बाद ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और हम लोग सक्सेसिव आंसर्स में अगर इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं तो फाइनली हम मेंस एग्जाम में काफी अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं. और आंसर राइटिंग के लिए मैम फिर अगेन सबसे ज्यादा जरूरी करंट अफेयर है बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेंस एग्जाम में आई थिंक कोई भी ऐसा आंसर नहीं था जिसमें मैंने करंट अफेयर यूज नहीं किया. तो आई थिंक करंट अफेयर यूज करना इज अ मस्ट थिंग. एंड करंट अफेयर हम लोग कभी यूज कर पाएंगे अगर हम लोग प्रॉपरली न्यूज़पेपर को गो थ्रू करेंगे 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए और उसके नोट्स बनाएंगे.
आई थिंक ये चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बात की कि आप हर आंसर को अपने सप्लीमेंट करते थे करंट अफेयर्स की नॉलेज के हिसाब से। कैसे आपने करंट अफेयर्स को कवर किया और यूपी रिलेटेड न्यूज़ को कवर किया? मैम, जहाँ तक करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी है, मैंने कभी कोई ऐसे कंपाइलेशन कभी कोई नहीं पढ़ी किसी कोचिंग की, या कोई भी कंपाइल ऐसे कंपाइलेशन कभी नहीं पढ़ी। मेरा एक सोर्स रहता था फिक्स, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में पढ़ता था। तो उससे क्या होता था कि अगर हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कोई स्टोरी है उसके हम लोग के डॉट्स लिंक हो जाते हैं। अगर हम लोग डेली बेसिस पे उसके एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो उसके करेक्टिंग आराम से हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो काफी डाइवर्स आंसर लिख पाते हैं। अगर किसी और के कंपाइलेशन हम लोग पढ़ के लिख रहे हैं तो फिर वो हमारे ओरिजिनल पॉइंट नहीं होंगे, तो वो नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आ जाता है कि उसने किसने काफी ज्यादा मेहनत करके लिखी है। तो आई थिंक अगर न्यूज़पेपर मेरा एक फोरमोस्ट रिसोर्स था, और फिर न्यूज़पेपर को मैं सप्लीमेंट करता था डेली करंट अफेयर की जो भी कंपाइलेशन अगर आ रहे हैं डेली बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स हैं इनके डेली करंट अफेयर्स आते हैं। तो अगर डेली बेसिस पे हम लोग करते हैं तो हम लोग को एंड में बर्डन नहीं लगता। तो आई थिंक इससे ये भी फायदा होता है कि न्यूज़पेपर में कभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो छोड़ देते हैं, तो वो हम लोग को डेली करंट अफेयर से मिल जाती हैं। तो आई थिंक ये दो सोर्सेस मेरे हमेशा से थे फॉर द करंट अफेयर, न्यूज़पेपर एंड डेली करंट अफेयर। तो वो मैं कंपाइल करके नोट्स बनाता था। और मुझे लगता है ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को स्टैंड आउट करवा सकते हैं और लोगों के आंसर्स के साथ। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है। इंटरनेट भी एक तरीके का चक्रव्यूह है, अगर हम देखें तो इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं सबके लिए। तो कई बार अगर एस्पिरेंट्स इस चक्रव्यूह में फंस गए तो उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। तो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को लिमिट रख के इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ना है? मैम, इंटरनेट की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है पूरे प्रिपरेशन में, हम लोग अगर उसको एफिशिएंटली यूज करें तो। और आई थिंक जी, एक चीज जो हमें दिमाग में रखना चाहिए हमेशा जब भी हम लोग कोई चीज अगर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, हम लोग को ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका हम लोग यूज कहाँ करें। तो अगर हम लोग को उसका एंड यूज पता है कि हम अच्छा इसको GS 3 में यूज कर सकते हैं या GS 2 में यूज कर सकते हैं, तभी हमें उसको पढ़ना चाहिए, अदरवाइज वो टाइम वेस्ट है। तो अगर हम मान लीजिए किसी भी न्यूज़पेपर का या किसी भी कॉलम का कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का एक टेंडेंसी होना चाहिए कि हम लोग उसको पढ़ के उसका कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जॉट डाउन कर लें, बिकॉज हम लोग उसको यूज कर सकें अपने आंसर्स में। तो हमेशा अगर इंटरनेट पे कोई भी सोर्स है, जस्ट मेक श्योर दैट वॉट एवर सोर्स यू आर रीडिंग या रेफरिंग डज हैव अ यूज इन योर आंसर राइटिंग। ये एक अगर हम लोग फंडा बना के चलेंगे तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंटरनेट पे। और हमेशा सिलेबस को साथ में रख के ही हमेशा इंटरनेट पे जो भी सोर्सेस हैं उनको रेफर करना चाहिए, बिकॉज टाइम वेस्टेज भी काफी ज्यादा हो जाता है अगर हम लोग इंटरनेट पे काफी ज्यादा टाइम अगर दे रहे अ, सभी एस्पिरेंट्स को जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं उसका एंड यूज अच्छे से पता होना चाहिए, तभी जो इन्फॉर्मेशन इम्बाइब कर रहे हैं उसके वो इम्पैक्टफुल होगी। शिवम, अभी आपने सिलेबस की बात की और हम पहले भी कई सारे टॉपर्स को सुन चुके हैं कि सिलेबस अंडरस्टैंडिंग कितना इम्पोर्टेंट है। बट कई बार जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो समझ नहीं पाते कि सिलेबस को अपनी प्रिपरेशन में कैसे परफेक्टली यूटिलाइज करना है। तो किस तरीके से परसीव करना है प्रिपरेशन में, शिवम, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली थोड़ा सा समझा दें। हैं। मैम, सिलेबस हम लोग का आप कह सकते हैं एक फोमस वेपन है इस एग्जाम में, बिकॉज अगर हम लोग सिलेबस पे कन्फाइंड रहते हैं तो हमारे पास काफी ज्यादा एडवांटेजेस है, बिकॉज एक तो टाइम कम लगता है और हम लोग का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बिकॉज हम लोग अगर सिलेबस को साथ में लेकर नहीं चलते हैं तो फिर हम लोग का टाइम काफी ज्यादा वेस्ट होता है, बिकॉज रिसोर्सेस लिमिटलेस है। तो अगर सिलेबस को रेफर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोग को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिलेबस के किस पोर्शन से लिंक है। तो प्रॉपर लिंकेज आना चाहिए हम लोग को, कोई भी अगर कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका प्रॉपर अगर हमें लिंकेज पता है कि अच्छा ये JS तरीके से इस पोर्शन से रिलेटेड है या JS 2 के इस पोर्शन से रिलेटेड है। और ये लिंकेज तभी आता है जब हमें सिलेबस बाय हार्ट होता है। तो इनिशियल अगर कोई स्टूडेंट एस्पिरेंट इनिशियल प्रिपरेशन इनिशियल फेज में है, तो उसको ये चीज रखना चाहिए कि हर दूसरे तीसरे दिन सिलेबस रिवाइज करता रहे, बिकॉज सिलेबस का दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर हम लोग ऐसे बहुत आप कह सकते हैं कि हम लोग घूम जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कहाँ पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डॉन्टिंग टास्क लगने लगता है और फिर वो एंग्जाइटी भी बढ़ने लगती है कि यार सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। आई थिंक सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा उसी के साथ रहकर हम लोग को अपनी प्रिपरेशन को एक रुख देना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए डायरेक्शन प्रोसेस के लिए। अ, शिवम, हमने मेंस
प्रीलिम्स, मेंस की बात की, अब हम थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में बात करना चाहते हैं। कैसे आपने प्रिपरेशन की, इंटरव्यू की, और क्या आप कुछ एक्सपीरियंस अपना इंटरव्यू का हमें शेयर कर सकते? Ma'am, for the interview portion, I was a bit confident regarding the interview because मैं हमेशा से मतलब स्कूल में भी कॉलेज में भी I was in the no the public speaking very much. तो मेरे को बोलने में ऐसा कॉन्फिडेंट था हमेशा से, बट इसमें क्या होता है कि इट्स अ पर्सनालिटी टेस्ट, इट्स नॉट एन इंटरव्यू। तो ये आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे हैं, इट्स नॉट व्हाट यू स्पीक, इट्स द वे यू स्पीक दे आर जजिंग। तो इसके लिए आई हैव गिवन अराउंड 7-8 मॉक्स, 3-4 ऑनलाइन दिए, कुछ ऑफलाइन भी दिए। तो अगर हम लोग वहाँ की बात करें, आयोग की बात करें, जो प्रॉपर इंटरव्यू होता है मेन वाला, तो वो बहुत नॉर्मल होता है, बहुत फ्रैंक होता है, हंसी मजाक के साथ होता है। मेरे तो पूरा हंसी मजाक के साथ इंटरव्यू हो रहा था। आई थिंक वो बहुत कॉर्डियल बोर्ड होता है, आपको पूरा कंफर्टेबल कर देते हैं वो। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप फ्रैंकली एक्सेप्ट कर सकते हैं। कि जैसे मुझे भी, अगर मैं क्वेश्चंस को रिफर करूँ, तो उन्होंने मेरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी जब से ली, फिर मैकेनिकल अपनी भूल गया, तो उन्होंने कुछ फॉर्मूले पूछे मेरे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो मुझे नहीं आते थे। तो अगर हम हम्बली एक्सेप्ट कर लेते कि हमें नहीं आता, तो हमें क्या करना है, हमें ब्लफ नहीं करना है वहाँ। तो अगर हम ब्लफ करने जाते हैं तो फिर वो इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर। अगर हम लोग नॉर्मली उसको टैकल करते हैं, हम्बली एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं आता है, या जो आता है उसको कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, तो आई थिंक ये ओवरऑल अगर ये मिक्सचर रहता है, तो हम लोग को एंड में रिजल्ट अच्छा मिलेगा, मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। और बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है, उसमें कोई डरने की कोई बात ही नहीं है, मतलब मेन इंटरव्यू इज वेरी मच कॉर्डियल। शिवम, जैसे आपने बात की, आपसे पूछा कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के क्वेश्चंस एंड यू वर नॉट एबल टू आंसर। तो शायद एक जनरल टेंडेंसी हम मान लेते हैं, जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, आफ्टर दे आर वंस इनटू द प्रिपरेशन, दे हार्डली मैटर्स अबाउट द ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स होते हैं। What if they are not able to remember the formulas or the questions that is related to engineering specifically, or if they don't answer the question, are they losing their chance of being selected? कुछ ऐसा dilemma या फिर कोई ऐसे chances होते हैं क्या? Pam, as far as my experience is concerned, I think there are two sort of questions which can be asked from your background, engineering background. One will be the conceptual questions, and the other will be the formula-based questions, like direct formula कोई पूछ लिया। तो I think concept में हमें wrong नहीं होना है, because हम लोग अगर concept पे wrong हो जाते हैं, तो that means we are challenging our own degree. तो I think ये नहीं होना चाहिए, हम लोग को concepts आने चाहिए। बट फॉर्मूले इट्स वेरी नेचुरल मैम, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हम लोग अपने कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं और अभी भूल जाते हैं, वेरी नेचुरल। उसको आराम से हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि सर नहीं आ रहा है फॉर्मूला, हम बाद में देख सकते हैं। तो और बट कॉन्सेप्ट से हमें हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए हम कर सकते हैं कि इंटरव्यू कॉल आने के बाद हम लोग अपना जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हमारे जो बीटेक या एमटेक किया हो अगर, तो उसके प्रोजेक्ट जो है उनको प्रॉपरली रिवाइज कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, एक ऊपर ऊपर से देख सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर फॉर्मूले कोई फैक्ट है वो नहीं बता पा रहे हैं, तो आई थिंक वो हमारे कोई चांस रिड्यूस नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्ट में मिस्टेक कर रहे हैं, तो आई थिंक वहां पे थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये इन दोनों चीज को हमको थोड़ा ध्यान में लेकर अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। आई एम श्योर ये एडवाइस बहुत सारे उन एस्पिरेंट्स के लिए वैल्यूएबल होंगी जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, क्योंकि ये चीज़ लैक करती है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में ज़्यादा। यस मैम। शिवम, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा मेंस के पेपर में होता है कि वो क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं आता है। उसको, उन क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है? मैम, इट्स वेरी नेचुरल कि हम अगर 20 क्वेश्चन का पेपर हो रहा है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि हमें 13-14 या बहुत ज्यादा 15 क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें हम लोग क्लूलेस होंगे, हमें कुछ नहीं पता होगा कि पूछा क्या है। तो आई थिंक इसमें हम लोग का काम आता है कि हम लोग कितने ब्रॉड नॉलेज रखते हैं अपने सिलेबस को लेकर। तो अगर थोड़ा भी हम लोग को आसपास का कुछ भी पता है, तो हम उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपरली प्रेजेंटेशन अगर हमारी है, तो अगर हमारा कंटेंट थोड़ा वीक है बट प्रेजेंटेशन स्ट्रांग है, तो हम लोग वहाँ पे मार्क्स उठा सकते हैं। तो आई थिंक हम लोग को उन क्वेश्चंस में जिनमें हमें कंटेंट कम आता है, तो उसमें हम लोग को प्रेजेंटेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो हमारे मेंस में था, एक क्वेश्चन रिगार्डिंग दी वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। तो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था रिगार्डिंग द वल्चर कंजर्वेशन, बट ओवरऑल मुझे आइडिया था कि वल्चर पे क्या थ्रेट हो रहा है, उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, और उनके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, तो ये मुझे पता था। तो ये कंटेंट थोड़ा था, तो इसमें मैंने प्रेजेंटेशन के लिए एक यूपी का प्रॉपर मैप बना दिया। आई थिंक जहाँ भी हमें कंटेंट लैग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग मैप्स का काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग अगर मैप का यूज करते हैं, तो वो हमारा आंसर दिखने में अच्छा हो जाता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाती है, तो कंटेंट पे ध्यान कम जाता है एग्जामिनर का।
तो हम लोग को उन क्वेश्चंस में जो हम लोग कम आ रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा मैनिपुलेशन यूज कर सकते हैं, हम लोग कुछ प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी कर दें और कंटेंट थोड़ा कम ध्यान रख के उसको, लेकिन अटेम्प्ट करना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस अगर हम सारे अटेम्प्ट करेंगे तो हमें ओवरऑल मार्क्स ज्यादा ही मिलेंगे। आई थिंक हमें छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो हमें किसी तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, जो भी थोड़ा बहुत आता है उसको प्रॉपरली लिखना है, उसको एक घसीट के नहीं लिखना है, बिकॉज फिर तो वो मार्क्स मिलेंगे नहीं, लेकिन अच्छे से लिखना है, कम भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट पूरा करना बिल्कुल। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सभी को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि हाफ हाफ आधे आधे नंबर का डिफरेंस हो जाता है, और रैंक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो जाती है। शिवम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जो भी एस्पिरेंट्स हैं यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं? मैम एक मैसेज ये रहेगा कि कंसिडर इट एज अ एग्जाम, इसको लाइफ का एक इवेंट नहीं लेना चाहिए, एक एग्जाम की तरह हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि ठीक है ये एग्जाम है, दिस इज द सिलेबस एंड दिस डे आई विल हैव टू राइट द एग्जाम। तो बस अगर हम लोग उस प्रोसेस को भरोसा करते हैं तो हमें एंड रिजल्ट मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, थोड़ा डिले हो सकता है नो डाउट, बट हम लोग प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हैं तो हमें एंड रिजल्ट जरूर मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर हम लोग लाइब्रेरी में या फॉर दैट मैटर अपने रूम में अगर हम लोग 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो एफिशिएंट होना चाहिए, वी शुड नॉट ब्लफ आवरसेल्फ, बिकॉज अगर हम लोग वहां पे टाइम नहीं दे रहे हैं तो अल्टीमेटली वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद अवर गोल। आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। और हमेशा अपने जो भी हमारा टारगेट है कि हमें एक हफ्ते में इतना कंप्लीट करना है या एक महीने में इतना कंप्लीट करना है, ट्राई टू स्टिक टू इट। और अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर लाग हो जाता है तो हम लोग उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज फिर वो पाइल अप होता जाता है तो फिर एक एंग्जाइटी बढ़ा देता है। तो आई थिंक ये कुछ कुछ चीजें हैं, अगर हम लोग रेगुलरली फॉलो करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर और टू, आई थिंक रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी एग्जाम नहीं कहूंगा मैं जो कंप्लीट क्रैक क्रैक नहीं हो सकती, द प्रॉपर स्ट्रेटजी से इट कैन इजिली बी क्रैक्ड इन 1 or 2 अटेम्प्ट। थैंक यू सो मच शिवम फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आई वुड अगेन मेंशन, एक ऑर्डिनरी शुरुआत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड पे आप हैं। एंड नहीं कहूंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शुरुआत ही कहूंगी इसे। और बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, इंट्रोस्पेक्शन, एंड यू ऑल द एस्पिरेंट्स मस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। तो ये बहुत ही अच्छी बात की, और मुझे लगता है जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आपकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर होंगे, अपने प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका, और आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें पूरा भरोसा है कि आप इस पोस्ट के साथ, इस रैंक के साथ पूरा जस्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।